Warm greetings, bright minds. Once again, I am back with you with your class 8 book of mathematics, and we are going to go for a journey for a new chapter, chapter number 8, that is algebraic expressions and identities. So time to begin, and we say it's the time for your warm up. So here we do some of the questions we already know. So you have to find the coefficient of a cube in minus 4a cube. That will be minus 4. You'll be leaving a cube and whatever is left, that becomes the coefficient. Here you want to find the coefficient of y. So coefficient of y will be 3x square. And then coefficient of y here is 1 upon 3, right? And over here you want to know the coefficient of x square, that will be minus 5y. Next question is identify each expression as monomial, binomial and trinomial. So here we have two terms. It is a binomial. And what do you say this? Yes, it's a monomial, only one term, right? And here we have three terms, so this becomes a trinomial. Now, one of the basic characteristics of algebra is to use letters and the combination of letters to represent numbers. And the letters used to represent the numbers are called variables. हम उनको क्या बोलते हैं? Variables. हमने alphabet use किए A, B, C, X, Y, Z, any alphabet, और उसके अंदर कुछ न्यूमरिकल वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. लेकिन जो सिर्फ न्यूमरिकल वैल्यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. राइट. नाउ वी कम टू द चैप्टर. तो बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की. क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? इट इज़ फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स by using the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. तो यहाँ पर suppose हमने एक लिखा 3x. This is only one term and it is an algebraic expression of one term. Another expression of two terms. यहाँ पर 3 terms है, हम इसको बोलेंगे algebraic expression of 3 terms क्योंकि ये माइनस साइन 2 times आया हुआ है तो ये 3 different terms बन गई. ऐसे यहाँ पर 2 different terms बन गई which is attached by plus sign, right? And here how many terms are there? First term is x, second term is 3, third term is x square. So we have 3 terms here. अब term क्या होता है? Term actually होता है एक variable या constant या variables और constant का product. जैसे यहाँ हमने 3x लिखा तो 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ 3x, ये 5x प्लस 4y, यहाँ 2 टर्म्स कंबाइन होकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रही हैं, राइट? तो ऐसे ही ये 5y स्क्वायर है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई y एंड हियर वी हैव 3 upon 2a square b. So this becomes 3 upon 2 multiply a multiply b. Got it? Now all these terms combine together to make algebraic expressions. Coming to coefficient. Coefficient क्या होता है? कोई भी numerical factor होता है किसी भी expression का, किसी भी term का, उसको हम coefficient बोलते हैं. जैसे यहाँ हमारे पास 2x cube है तो 2 है आपका numerical coefficient, okay? And here we have 4 as a coefficient और x का coefficient 1 होगा. Next is what are like terms and unlike terms. So remember, when we have a terms with same variables and with same powers, हम उनको like term बोलेंगे. और अगर उनकी powers different है तो वो बन जाएंगी unlike terms. यहाँ पर 20x square y, 5x square y, इन दोनों को हम like terms बोलते हैं, right? After this we see here 35xy and 3xy. So they are again like terms. Next one we have 7y and 4y, another pair of like terms. और यहाँ 4 और 8 they are also like terms. लेकिन अगर मैंने लिखा 4x square y और 3
x. So these are different variables with different powers, they are unlike terms. Now coming to polynomial, तो कोई भी algebraic expression जिसकी 1 या 1 से ज़्यादा कोई भी terms होती हैं उसको एक standard name दिया जाता है polynomial. Poly means many, that means many terms could be there, and provided it has no term with negative or non-negative integer exponent of the variable. Variable की कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. एंड पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponents of the variable are non-negative integers. Got it? So the exponents of all the variables have to be positive integers in a polynomial, and if any variable in any term of the expression has नेगेटिव और नॉन नेगेटिव नॉन इंटीजर एक्सपोनेंट, हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट्स पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया, अगर हमने ये एक्सप्रेशन लिखा डिनोमिनेटर में y स्क्वायर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में y स्क्वायर का मतलब y की पावर -2 हो गया, एंड वी से इट इज़ नॉट द पॉलिनोमियल. गॉट इट? नाउ आफ्टर दिस यू लुक हियर, यहाँ पर हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं. गॉट इट? सो वी कॉल दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स. कम फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. तो मोनोमियल मीन्स जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 टर्म होगी वो मोनोमियल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर 3xy 43x²y, सी ऑल हैव 1 टर्म्स. अब हम बाइनोमियल पर आते हैं. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स. सो जहाँ पर भी आपने एक्सप्रेशन देखा जिसमें 2 टर्म्स आ रही हैं वो सब बाइनोमियल हो जाते हैं, राइट? बट यहाँ देखेंगे दिस इज नॉट अ बाइनोमियल. क्यों बाइनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में रूट b आ रहा है, दैट मीन्स वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, and it cannot be a binomial, right? Similarly here ax upon y square, यहाँ डिनोमिनेटर में फिर y की पावर 2 आ रहा है, तो y की पावर हो गई -2, तो ये आपका कभी भी एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. एंड हियर x की पावर है 1/2, so it is also not a algebraic expression. ट्राइनोमियल, जहाँ पर 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा, हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल. गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और आपने रीजन भी देना है. एंड सी हियर, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स. दिस इज नॉट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि डिनोमिनेटर में y आ रहा है. 2 terms of algebraic expression, that means it is a binomial. This is a trinomial. ये algebraic expression नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर फ्रैक्शन में है. and this is a algebraic expression of 1 term. ये monomial है, ये trinomial, monomial, binomial, and it is not the algebraic expression again क्योंकि पावर -2 आ रही है y की. Got it? अब हम बात करते हैं polynomials in 1 variable. तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जब भी कोई पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है या x कोई भी पावर हो, x की पावर 2 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1 हो, x की पावर 0 हो, दैट मीन्स कांस्टेंट हो, वो सब बोले जाते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. बट कई बार हमारे पॉलिनोमियल्स मल्टी वेरिएबल्स में होते हैं. यहाँ आपने देखा 3x² एंड 4xy². So we call them polynomials in many variable. यहाँ हमने PQR लिया है और ये algebraic expression 3 वेरिएबल से बना है. Got it? अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालने के लिए हम अपने पॉलिनोमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर को चेक करते हैं. कैसे? यहाँ पर 3x² + 5x + 3, यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, तो यहाँ हमने बोला डिग्री 2 हो गई. लेकिन यहाँ पर x की पावर सिर्फ 1 है, सो दिस हैज़ अ डिग्री ऑफ 1. एंड इफ़ आई से 5, तो 5 अकेले का मतलब होता है बेटा 5x⁻⁴, तो यहाँ इसकी डिग्री हो गई 0. ओके, एंड हियर द हाईएस्ट पावर इज 6, सो डिग्री विल बी 6.
Let's move ahead, and in the case of polynomial with one or more variable, first compute the sum of the exponents of the variables present in different terms. यहाँ हमने देखा x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2, y की पावर 3, तो यहाँ हमारी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स आ गया 5, एंड यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, तो x 1 प्लस 1 इज 2, सो यहाँ पर आपकी टोटल पावर हो गई 2. अब हाईएस्ट पावर है 5, सो वी विल से डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 5. नाउ कमिंग टू पॉलिनोमियल, यहाँ पर x की पावर 2, y की पावर 1, सो पावर इज 3, 4 प्लस 1 पावर इज 5, 3 प्लस 3 पावर इज 6, so here the degree becomes 6. And coming to next example, find the degree of each of the following polynomial. So here you could see y की power 2, y की power 1, y की power 0, so degree becomes 2. अब आप यहाँ बताएंगे क्या डिग्री है इसमें. 7 plus 2 is 9, 6 plus 4 is 10, 4 plus 2 is 6, that means 10 becomes the degree. जो highest power होती है वो हमेशा डिग्री हो जाती है. Got it? Now what is a linear polynomial? जब किसी भी algebraic expression की highest power 1 होती है, that means if the degree is 1, we call it a linear polynomial, and if the degree is 2, we call them quadratic polynomial. और अगर डिग्री 3 हो जाती है तो आपका polynomial cubic polynomial हो जाता है. Got it? Now coming to exercise 8.1, which of the following are polynomial? This is a polynomial. This is not a polynomial. डिग्री नेगेटिव में है, डिग्री फ्रैक्शन में है, तो ये फिर से polynomial नहीं है. This is a polynomial, this is a polynomial, this is a polynomial, and what about this? ये polynomial नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पावर 1/2 में आ रही है. So this is not a polynomial and this is a polynomial. Next question, आपने डिग्रीज निकालनी है. Given below are polynomial in one variable, arrange them according to descending order of their degrees. Okay. Now ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसके बाद लिखेंगे 3 वाला 4x3, फिर 4x², फिर 3x एंड फिर 50. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर जाते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन रूल टू राइट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम आते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स. तो सबसे पहले हम ऐसे पॉलिनोमियल्स में आते हैं जहाँ पर लाइक टर्म्स होती हैं. तो जब लाइक टर्म्स होती हैं तो उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम ऐड कर देते हैं. यहाँ 7 + 8 + 3 18 हुआ, तो आपका आंसर आ गया 18x. एंड हियर 35 - 3 ये बना 32, एंड xy लिखेंगे उसके आगे. सिमिलरली 20 + 5 becomes 25. लेकिन जब आपकी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं होती, देन वी कैन नॉट जॉइन देम टुगेदर. उन टर्म्स को हम एज इट इज लिख देते हैं. गॉट इट? सो इफ आई से 7x + 7y को ऐड करना है तो वो सिंपली 7x + 7y ही लिखा जाएगा. एंड 35x - 25xy², सो इट विल ऑल्सो रिमेन सेम. अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर. सो यू हैव टू ऐड दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. हम इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे. कॉलम मीन्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एक दूसरे के नीचे पूरे एक्सप्रेशंस लिखेंगे. बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपने सीखना है. वो रूल ये है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आएंगी. सो 7x², देन हेयर 4x² एंड हेयर -3x², एक के नीचे एक आ गई. ऐसे ही फिर हमने लिया 4xy नेगेटिव का यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से 3xy यहाँ इसके नीचे आया, प्लस 6xy इसके नीचे आया. गॉट इट? एंड आफ्टर दिस 8y², 3y² -7y², और हमने इनको ज्वाइन किया एंड दिस बिकम्स योर आंसर. So moving further, we come to next example. You have to add these expressions. कैसे ऐड करेंगे? हमने लिखा x³ + 3x²y + 8xy² + y³ and 2x²y यहाँ
माइनस 4xy² यहाँ, एंड सिमिलरली यहाँ पर x², अब कोई भी टर्म x² की नहीं है उसको अलग लिखा, देन 6x³, देन वी आर पुटिंग इट अंडर x³ ठीक है ना, और उसके बाद y², तो y² अलग आ गया, -2y³ y³ के नीचे आया -2y³, 3x²y यहाँ पर आया एंड प्लस y² इट कम्स हियर, और हमने इसको ऐड किया, फिर उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, ऐड करके एक एक टर्म का सम निकाला एंड वी फाइनली गेट द वैल्यूज, गॉट इट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड वी हैव द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है, इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं एंड हमने उसका पैरामीटर निकालना है, इसका मतलब हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ब्रिंगिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। एंड द साइज ऑफ द रेक्टेंगल, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, हम उसका पैरामीटर निकालेंगे। मूविंग फर्दर, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। So let's take the example here. You have to subtract this polynomial from this polynomial. ये polynomial हमने पहले लिखा और उसमें से इस polynomial को subtract करना है तो इसको नीचे लिखा। अब रूल बोलता है जिसको subtract करना है उसके साइंस चेंज कर दो। तो यहाँ ये पॉजिटिव था नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव नेगेटिव बना, ये नेगेटिव पॉजिटिव बना और ये नेगेटिव पॉजिटिव बना, राइट। -5 + 1 it becomes -4y², -7 + 5 ये बना -2xy² एंड +4 -4 बना 0 एंड 7 - 3 is 4x². So this is your final answer. Now subtract this from this, right? तो सबसे पहले जिसमें से subtract करना होता है उसको लिखा और जिस एक्सप्रेशन को subtract करना है लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख दिए, साइन चेंज किया एंड जो आंसर आया वो यहाँ है 7x⁴, 8x³ - 3x³ ये हो गया आपका 0x³ एंड देन -6 - 4 is -10x², दिस इज -2x and +4, so this will be your -2, got it। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ हमें सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब्ट्रैक्शन के, आई वॉन्ट यू टू ट्राई योर सेल्फ। नाउ वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है हाउ मच स्मॉलर इज दिस नंबर, वी हैव अ नंबर, ये कितना छोटा है इससे, दैट मीन्स इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसके नीचे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। हाउ मच लार्जर इज दिस देन दिस, दैट मीन्स ये बड़ा नंबर है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो बॉट अ शर्ट फॉर रुपीज दिस एंड बेल्ट फॉर दिस, हाउ मच डिड ही स्पेंड, सो यू वांट टू नो उसने टोटल कितना स्पेंड किया, सो वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम, राइट। इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं अपनी नोटबुक में एंड मेक श्योर यू डू इट वेरी नीट एंड क्लीन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम जब दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज़ 3 × 4 विच बिकम्स 12। अब x को अलग, x × x², इट बिकम्स x³ तो यहाँ पावर 1 + 2 हो जाएगी एंड ऐसे ही y की पावर 1 और 1 इट बिकम्स y की पावर 2, गॉट इट, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ आफ्टर दिस 8x³ y की पावर 5, देन 4x⁻⁴ y की पावर 3। तो कॉन्स्टेंट्स 8 × 4 is 32 एंड आफ्टर दिस वी हैव 3 + 4 x की पावर 7 and next is y की power 5 + 3, so it becomes y⁻8। Coming to multiplication of monomial with a binomial, तो आपने एक मल्टीप्लाई करना है, ये बायनोमियल है, उसको मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस मोनोमियल को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेम मोनोमियल को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा 5x³ y² × 3x² y² प्लस
ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 4x² y क्यूब मल्टीप्लाई 3x² y स्क्वायर। हियर यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें 15 x की पावर 5 y की पावर 4 मिला, और इसी तरह 4 3 12 y की पावर 3 plus 2 that is 5 and x की पावर 2 plus 2 that is x की पावर 4 and this becomes your answer. Got it? अब इसका सेकेंड मेथड है, हमने यहाँ अपना बायनोमियल लिखा, यहाँ अपना मोनोमियल लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टाइम और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सेकेंड टाइम। तो आप दोनों में से जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कमिंग टू पॉलिनोमियल विद अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब आपकी टर्म्स 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी टर्म्स हैं उसको मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, हर टर्म को इस वाले मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ये तीनों टर्म्स यहाँ लिखी और यहाँ पर ये टर्म लिख दी। गॉट इट? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस साइन है तो ये प्लस साइन हो गया, एंड इधर आपके पास माइनस और प्लस साइन था तो ये आपका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। गॉट इट? थर्ड टाइम इसी वाली टर्म को 2x² y से मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज योर आंसर। गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्राइनोमियल विद अ बायनोमियल। तो जब हम ट्राइनोमियल की बात करते हैं, ये ट्राइनोमियल लिया, इसको बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। क्या प्रोसीजर होता है? पहले एक टर्म पिक की बायनोमियल की, इस टर्म के साथ हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड टाइम नेक्स्ट लाइन में 3x पिक किया और उसके साथ इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। राइट? अब इनको हम ऐड करेंगे एंड दिस इज योर आंसर आफ्टर एडिंग। गॉट इट? नाउ इफ आई मल्टीप्लाई अ ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल, बहुत सिंपल है, देखेंगे। ये हमने ट्राइनोमियल लिया, ये ट्राइनोमियल आ गया, और दूसरा ट्राइनोमियल इसके नीचे लिखा और लगाया साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब नीचे वाले ट्राइनोमियल में हमें -4 दिया है, इस -4 को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई किया, फिर 3x को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद 5x² को फिर इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, और जब हमने इसको ऐड किया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड, वी कम टू एक्सरसाइज। So this is exercise 8.4. You have to perform the multiplication. बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। This is simple monomial with a monomial. यहाँ पर मोनोमियल्स थोड़े हायर ग्रेड के हैं जहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ बना 15x की पावर 3y। ओके, अब हम आते हैं फाइंड द प्रोडक्ट मोनोमियल विद बायनोमियल। यहाँ पर सारे मोनोमियल विद बायनोमियल हैं, एंड हियर वी हैव बायनोमियल विद बायनोमियल। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद अपनी नोटबुक में बहुत नीट एंड क्लीन मेथड से लिखने वाले हैं। कमिंग टू डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिविजन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, एंड इन अलजेब्रा द डिविजन प्रोसेस इज सिमिलर टू डिविजन इन अरिथमेटिक। नाउ वी हैव द एग्जाम्पल हेयर। आपने 10x रेज़ टू द पावर 7 को डिवाइड करना है 2x रेज़ टू द पावर 4 से। तो यहाँ पर हमने 10 को डिवाइड किया 2 से, हमें मिला 5, और x की पावर 7 माइनस x की पावर 4 हो जाएगा। आपके पावर्स एंड एक्सपोनेंट में हमने ये रूल्स पढ़े हैं, तो हमें मिला 5x³। गॉट इट? नाउ वी कम एट डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे? हम पूरे पॉलिनोमियल को डिफरेंट टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमने लिखा 4 ये px अपॉन p, py अपॉन p, pz अपॉन p, एंड p एंड p कैंसिल हुआ, x बचा, p एंड p कैंसिल, y बचा, p एंड p कैंसिल, z बचा। तो आपका आंसर आ गया x प्लस y प्लस z। गॉट इट? नाउ डिवाइड दिस बायनोमियल विद अ मोनोमियल। क्या करेंगे? फर्स्ट बायनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, सेकेंड ब्रेक। यहाँ हमने फर्स्ट टर्म को इस मोनोमियल से डिवाइड किया, हमें मिला -4x²y।
सेकेंड टाइम माइनस 16x³ y⁴ को भी सेम टर्म से डिवाइड किया और हमें मिला +2xy³। तो हमारी ये दोनों टर्म्स आंसर की टर्म्स हो गई। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड and we have exercise 8.5 here. So you have to simplify the questions and try doing them. अब हम आते हैं divide 4ax² + 8a² x by 8ax। क्या करेंगे? 4ax² को 2ax से डिवाइड किया, 8a² x को 2ax से डिवाइड किया, यहाँ मिला 2x, यहाँ मिला 4a and your answer becomes 2x + 4a। एंड अब हम आ गए डिविजन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद पॉलिनोमियल। सो वी आर गोइंग टू यूज अ डिविजन मेथड हेयर। कैसे यूज करेंगे? हेयर वी हैव अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझेंगे। 2a + 1 से डिवाइड करना है इस वाले एक्सप्रेशन को, तो पहले हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। दैट मीन्स हायर पावर पहले, ये हायर पावर लिखी, फिर -7a और फिर -5। So 2a + 1 and here 3a से हमने क्या करना है कि 2a की टेबल बोलेंगे कि 2a को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6a² आएगा। सो वी ऑब्जर्व कि 3a से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2a × 3a इज 6a²। अब 1 को 3a से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3a मिला। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द साइन, ये 6a² और -6a² हो गया। ऐसे ये -7a है और ये -3a हो जाएगा। सो इट बिकम्स -10a और हमने -5 को नीचे लेकर आना है। अब 2a की टेबल बोलेंगे जब तक -10a नहीं आएगा, दैट मीन्स -5। सो इट बिकम्स -10a -5 and then we change the sign, they get cancelled, we get a remainder 0. Got it? अब इस आंसर को चेक करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं। क्या करेंगे? 2a + 1 और 3a - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें वो ही टर्म जिसे हम डिवाइड कर रहे थे वो ही आंसर हमें वापस मिल गया। सो वी से आवर डिविजन इज करेक्ट। गॉट इट? नाउ वी मूव अहेड एंड वी हैव अ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट। प्लीज ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अलजेब्रा, दैट इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? अभी तक हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इक्वेशन लिखी हमने कोई भी, सपोज 3x + 5 = 20। यहाँ पर x को हम कोई एक वैल्यू देंगे और वो उसकी लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन को इक्वल कर देगा। बट जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, कोई भी अगर हमने आइडेंटिटी लिखी तो उस आइडेंटिटी में क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करें, हर वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो। अब फर्स्ट आइडेंटिटी पर आते हैं, दैट इज x + a × x + b = x² + ab + x × a + b। कैसे किया हमने? इन दोनों बायनोमियल्स को बायनोमियल प्रोडक्ट के रूल से मल्टीप्लाई किया एंड दिस बिकम्स योर आइडेंटिटी। So we say the product of two factors is represented by the area of the rectangle with the factors as the side of the rectangle, right? Now let us consider a rectangle जिसकी sides 3 units और 4 units हैं and इसका area इन दोनों का product हो जाएगा। Similarly, we may take the values of x, a and b in the above identity and we get the area of that particular rectangle. Now we come to the geometrical interpretation. तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसकी साइड x + a है और दूसरी साइड x + b है। अब इसका टोटल एरिया क्या होगा? x + a × x + b। तो सबसे पहला पार्ट x को x से मल्टीप्लाई किया, हमें x² मिला। नेक्स्ट टाइम x और a को मल्टीप्लाई किया, वो ax मिला। नेक्स्ट टाइम x को b से मल्टीप्लाई किया, वो xb मिला। और थर्ड टाइम यहाँ a और b को मल्टीप्लाई किया तो ab मिला। सो पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया x + a × x + b and it will be x² + ax + bx + ab. That becomes your answer.
अब ए एक्स प्लस ए बी में x कॉमन लिया तो आपकी ये आइडेंटिटी क्रिएट हो गई एंड वी कॉल इट आइडेंटिटी नंबर 1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, a से a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, फिर b से a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, बायनॉमियल को बायनॉमियल से मल्टीप्लाई किया, राइट, एंड वी गेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर। So this becomes a square plus 2ab plus b square and this is your answer। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो एक साइड a प्लस बी, दूसरी साइड a प्लस बी, and in this way we get the 4 terms and this becomes your final answer। So now we come at another identity, identity number 3, and here you could see that it is a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। Now how this identity is formed? a minus b whole square का मतलब होता है a minus b को a minus b से मल्टीप्लाई किया, बायनॉमियल का प्रोडक्ट बायनॉमियल के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को a minus b से, फिर माइनस b के साथ a minus b, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिला a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे ये आइडेंटिटी बनती है। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया कि ये साइड a है, ये साइड भी a है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ये b लिया और ये b लिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट हो गया ये a माइनस बी और a माइनस बी हो गया। अब सबसे पहले इसको हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला, जब ना हमने a इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया a और a, वो बना a स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया b वाले पार्ट को, ये b है, b को मल्टीप्लाई किया a माइनस b से, राइट। ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई किया b को, दिस इज b और a के साथ, एंड हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करके ये इक्वेशन मिल जाती है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, आई विल टेल यू। यहाँ पर हमारा एक स्क्वायर है बड़े वाला, जिसकी डायमेंशंस a और a है, और हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है b पार्ट, तो b a में से सब्ट्रैक्ट हुआ, और जो 4 स्क्वायर्स बने वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आ गए, और उस रेक्टेंगल को हमने कंसिडर किया। तो जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें मिला एक स्क्वायर AEFJ, और AEFJ स्क्वायर का मतलब जो बड़ा स्क्वायर है ABCD, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल JHCD एंड रेक्टेंगल BHFE, एंड फाइनली हमने जब उसको कैलकुलेट किया तो हमें स्क्वायर का एरिया मिला a स्क्वायर माइनस AB एंड AB माइनस B स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस का साइन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, माइनस ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ आइडेंटिटी पर, a प्लस बी a माइनस बी एंड वी गेट द रिजल्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, ये एक बायनॉमियल, ये एक बायनॉमियल, तो बायनॉमियल विद बायनॉमियल का प्रोडक्ट लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी से a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ इट इज शोन ज्योमेट्रिकली। गॉट इट। अब हम आगे चलते हैं, ये एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कहाँ अप्लाई होती है, कई बार हमारे जो सम्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उनको अगर हम आइडेंटिटीज से सॉल्व कर देते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो वी हैव x प्लस a x प्लस b एंड वी गेट x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस ab, and let's see how we are going to apply it in different questions. So this is 3x plus 5 and 3x plus 4, तो 3x x की जगह आया और a की प्लेस पर आया 5 और b के प्लेस पर आ गया 4। आइडेंटिटी क्या बोलती है, आइडेंटिटी बोलती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म्स जो a और b है उनका सम, एंड प्लस
जो a और b है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3x होल स्क्वायर बिकम्स 9x स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई 9, दैट बिकम्स 27x एंड दिस इज 20, राइट. अब नेक्स्ट लेते हैं x minus 3, x plus 8. So here we write down x square and x के साथ minus 3 और plus 8 को add किया and plus minus 3 plus 8. So this becomes minus 24. So this is x square plus 5x minus 24. Let's apply it for long questions. We are going to multiply 101 multiply 98. तो 101 को हमने 100 plus 1 लिखा और 98 को लिखा 100 minus 2. अब हमने आइडेंटिटी अप्लाई की x plus a, x minus b. So we put the values और values put करके हमें ये आंसर मिल गया. So this becomes more easy than finding the square of 101. पहले 101 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ज़्यादा easy this becomes, okay, when you apply the identities. Coming at next example, here we have an identity a plus b whole square, right. तो पहला क्वेश्चन हमने लिया x plus 3 whole square. So no need to do the calculation, हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 times फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर एंड दिस इज व्हाट वी गेट इन रिजल्ट. नाउ वी गेट 103 स्क्वायर. 103 स्क्वायर का मतलब 100 plus 3 का होल स्क्वायर. So this will be 100 square plus 3 square plus 2 multiply 3 multiply 100 and when you solve it you get this answer. See 103 का स्क्वायर निकालना इतना आसान नहीं होगा ना. Yes. Now let's take a minus b whole square. You remember the identity a square minus 2ab and plus b square. अब इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करते हैं x minus 5 whole square. So we'll get first number का square that is x square, second number का square that is 5 square and minus 2ab. So this is how we get the result. Now coming to 23 square. 23 square निकालने से easy होगा अगर हमने लिखा 25 minus 2 का whole square. So we'll write down 25 square that is 625 and 2 का square that is 4 and minus 2 multiply first number that is 2 and second number that is 25. So this becomes minus 100 and this is your answer. Now let's see how we use a minus b, a plus b. Now let us see how we use a plus b. A minus b is equal to a square minus b square. So we get x plus 3, x minus 3. First number का square that is x square and second number का square that is 9. So x square minus 9 is your answer. Coming to another question, 97 multiply 103. 97 को हम 100 minus 3 लिख सकते हैं और 103 को हम लिख सकते हैं 100 plus 3. So this is a square minus b square. a square हुआ 100 100, right. This is 10,000 minus 9 और हमें आंसर मिल गया that is 9,991, right. Coming to the exercise now. ये exercise उन्हीं identities के ऊपर based है जिसके ऊपर based अभी हमने examples किए. So please try doing them yourself. Now coming to identity 5. अब हम लेते हैं cube की identity. a plus b whole cube. a plus b whole cube is a plus b को 3 times multiply किया, right. तो एक बार तो a plus b as it is लिखा और लिखा a plus b whole square. Now we know what is a plus b whole square and a plus b whole square की वैल्यू को expand करेंगे a square plus 2ab plus b square. वन टाइम हमने इसको a के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टाइम हमने इसको b के साथ मल्टीप्लाई किया और जब इसको ओपन किया so we get a cube plus 2a square b plus ab square and then we have plus a square b plus 2ab square plus b cube. And in this way on solving we get this value a cube plus b cube plus 3ab a plus b. तो इसको जब हम solve करेंगे 3ab कॉमन आएगा और a plus b will come in the bracket. Then we come at subtracting 3ab a plus b from both the sides. We will be writing
a plus b whole cube minus 3ab a plus b is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b and minus 3ab a plus b. ये दोनों कैंसिल हो गए. तो अगर हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्रिएट करना है, आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, दैट विल बी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी. तो हमने क्या किया है, हमने इनफैक्ट इस फॉर्मूले से a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला डिराइव किया है and we name it as identity number 6. Now this is identity 7. a minus b whole cube. a minus b whole cube का मतलब a minus b को a minus b से 3 times multiply करेंगे. तो it becomes a minus b multiply a minus b whole square. a minus b whole square क्या होता है, a square minus 2ab plus b square. तो इसको हमने एक बार a से मल्टीप्लाई किया और एक बार b से मल्टीप्लाई किया, और जब इसको एक्सपैंड किया, सॉल्व किया, तो हमें मिलता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. एंड इन दिस वे, इस फॉर्मूले से हमने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला डिराइव किया. हमने क्या किया, दोनों साइड प्लस 3ab a माइनस b कर दिया. तो इधर प्लस 3ab a माइनस b किया, इधर भी, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमें मिला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b. गॉट इट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. दैट मीन्स a प्लस b प्लस c को a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट टाइम a को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम b को एंड थर्ड टाइम c को, राइट. एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ आया एंड प्लस ए बी 2 टाइम्स प्लस सी ए 2 टाइम्स प्लस बी सी 2 टाइम्स. सो हमारी आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc and 2ca. Got it? And this is the geometrical representation of this identity. Now let's learn to expand. तो अभी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उन आइडेंटिटीज को यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सपैंड 3x प्लस 4y होल क्यूब. यहाँ हम a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. तो a के प्लेस पर हमने लिखा 3x, b के प्लेस पर हमने लिखा 4y. 3x होल क्यूब प्लस 4y होल क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. And this is on expanding we get the solution. Now we may use a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. And यहाँ पर भी हमें same result मिला. Got it? Now moving further, we have another example जहाँ हम a minus b whole cube की identity apply करेंगे. So what we do? a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमें मालूम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. अब यहाँ हमने a के प्लेस पे लिखा 2x, b के प्लेस पे लिखा 5y, एंड व्हेन यू पुट द वैल्यूज पुट करने के बाद दिस बिकम्स योर सॉल्यूशन. मोरओवर वी नो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. तो अगर आप यहाँ पर भी वैल्यूज रखेंगे, a के प्लेस पर 2x और b के प्लेस पर 5y, you will get the same answer. So you can solve it in any way you like. Got it? Let's see another question. We have if 3x plus 4y equals 18 and xy is equal to 6, you have to find the value of 27x cube plus 64y cube. So if you look at very carefully, this is 3x whole cube and this is 4y whole cube. तो हम इसको लिख सकते हैं 3x whole cube plus 4y whole cube. एंड यहाँ पर 3x को a एज्यूम किया, 4y को b एज्यूम किया, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी एंड वी गेट दिस वैल्यू. नाउ वी नो 3x प्लस 4y हमें 18 दिया हुआ है
और xy की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड वी गेट दिस आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इवेलुएट 1005 क्यूब। तो 1005 क्यूब को हम 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं एंड दिस बिकम्स 1000 प्लस 5 क्यूब। यहाँ अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट एंड दिस आंसर इज मोर इजी देन गोइंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 1005 cube, right? Now exercise for you. So all these questions are rightly based on the examples. अभी हमने जो जो examples किए हैं उसी के ऊपर based ये questions हैं, आप इसको solve करने वाले हैं। And here we have a MCQ. The first question is which of the following is a monomial? So we'll observe, यहाँ x denominator में है, ये तो polynomial ही नहीं है, यहाँ x negative है, again it's not a polynomial. This is a monomial. Okay, the degree of this polynomial, इस polynomial में highest degree क्या है? So this is y cube, यहाँ पर 2 power है, यहाँ 1 2 3 4, so 4 becomes the degree. Okay, and then we have x plus 3 x minus 5, so what will you get? This will be x square minus 15 and minus 2x. This will be your answer. Okay, यहाँ पर a plus b a minus b की आइडेंटिटी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने x प्लस a x प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई की है एंड द सम ऑफ दीज टू। तो यहाँ पर हमने देखा x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, सो दे बोथ कैन नॉट बी एडेड, सो दिस विल बी योर आंसर। And when 5x square y square z is subtracted from 3x cube y square z, so 3x cube y square z को हम पहले लिखेंगे minus 5x square y square z. This will be your answer. Got it? And this way you have completed your chapter. So stay tuned for the next chapter. Till then, namaste and goodbye. Take care of yourself.